ब्रह्मानंद। इनका जन्म 21 दिसंबर 1870, 1870, 21 दिसंबर। माता पिता बहुत बड़े जाने माने परिवार से थे। जी। क्या कर पढ़ के सुना दे क्या? पढ़ के सुनाता। तो जिन्होंने लिखा है वो इनको महाराज श्री के नाम से संबोधित कर रहे हैं। Maharaj Shri's early years were very unusual. Even as a child, he sensed the transitoriness of the world and had an urge to renounce it. He was unconcerned about routine affairs, loved solitude and mature behavior, disliked fickleness. His soulful transcendental look impressed everybody. He had no tongue for tasty sweetmeats, nor an eye for fashionable clothes. He had no interest in the usual pleasures and entertainment, in toys and games that children play. He opposed purposeless talk and purposeless activity. Where he sat, lost in his own train of thoughts. Seeing his seriousness and unusually mature behavior, family folks were astounded and grasped क्यों लिखा है? However vaguely, that they were in the presence of a celebrity in the making. Sharp intelligence, logical reasoning, quick decision making, age 7. At that age, he lost his most beloved companion, playmate, and friend, his grandfather. 100-year-old died. He was not allowed to see the corpse. Though a servant took him to a window from where he managed to see the covered body of his grandfather being taken away to the chant of राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. Eyes closed as if in a meditative sleep, his grandfather was going away forever, never to meet again, leaving behind his last message, राम नाम सत्य है. The child's thoughts turned to death. His grandfather, whom he had regarded as his own, had left. One by one, he thought, they would all leave. His father, his mother, his uncles and aunts, all his relatives. One day he himself would be dead. When everyone has to go, no one is to live forever, then what is the truth? What is it that is permanent? What is it that will remain? Vibrating loudly in his ears was the sound Ram Naam Satya hai. Interesting, ना? जहाँ ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी बता दीजिएगा. Days passed, but the thoughts generated by this sound reverberated deeper and deeper in him. The sound was irreversibly recorded in his innermost consciousness. It became the refrain of his life, his motto. He became more and more convinced about the illusion pertaining to this world, his folks,
attributing his melancholy solely to his grandfather's death, wondered how to console him. 1 year passed, he was 8 years old. The Upnayana ceremony was duly performed in accordance with the Vedic rites. The sacred thread was put around his body and he was sent to Kashi for a study of the Vedas. As days passed, the cultural mainstream of the ancient city had a growing impact on him, so that he resolved that come what may, he would devote his life entirely to spiritual development. सबको इंग्लिश नहीं समझ में आता होगा नहीं? क्या करें? हिंदी What to आप इंग्लिश में बोलते जाओ स्वामी जी, मैं हिंदी में बोलते जाती हूँ। that? या आप भी तो भी बोल सकते हो। तो अभी तक की कहानी ये है कि बहुत जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही बहुत शार्प थे। कोई भी इधर उधर की बात, फालतू बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, खाने पीने में कोई टेस्ट नहीं। और एक दिन इनके दादा का देहांत हो गया, जिनके बहुत नजदीक थे। तो इनको ना इनके दादा का शरीर देखने तक नहीं दिया गया। घर के नौकर ने केवल एक झलक लेने दिया। उस समय हमारे यहाँ बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। सब लोग बोल रहे थे, तो ये राम नाम सत्य है इनके दिमाग में घूमता रहा। और इनको ये लगा कि आज दादा गए हैं, कल पिताजी चले जाएंगे, माँ चली जाएगी, ऐसे करके तो सब लोग चले जाएंगे, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, तो फिर सत्य क्या है। फिर इनका उपनयन संस्कार हुआ 8 वर्ष की आयु में और इनको काशी भेज दिया गया पढ़ने के लिए। काशी में काशी का भी इन पर लिखा है कि बहुत प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे इनका निर्णय ऐसा होता गया कि मैं जीवन को अध्यात्म में ही लगाऊंगा। उस समय जल्दी विवाह होता था और तो ब्राह्मण वर्ग से थे। तो इन्होंने, इनके घर वालों ने ऐसा सोचा कि इसको वापस बुला के इनकी शादी करा देते हैं। तो अब इनके सामने ना दो ही रास्ता रह गया। उस तरफ जाएं तो हमेशा के लिए जीवन में फंस जाएंगे और ये सब चीज में, और जो उनका उद्देश्य तब तक बनता जा रहा था कि सत्य को पाना, वो छूट जाएगा फिर। और इन्होंने निर्णय ले लिया और काशी छोड़ करके, घर जाने के बजाय काशी छोड़ के गंगा के किनारे चलते चलते कि मैं एक दिन ऋषिकेश हरिद्वार पहुंच जाऊंगा और वहां तपस्या करूंगा। और बिल्कुल गंगा के किनारे किनारे चलते चले गए। ऐसा कहते हैं रास्ते में छोटा बच्चा देख के माँ गंगा ने बोला कि थोड़ा रुक जाओ, विश्राम कर लो। तो इन्होंने बोला, माँ रुकने का समय नहीं है, मैं रुकना नहीं चाहता। तो माँ ने कहा कुछ एक दो, थोड़ा एक दो घूंट पानी पी लो। तो इन्होंने केवल इतना बोला कि माँ आप अपना आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मैं ये लंबी यात्रा पूरी कर लूंगा। मुझे रुकने वाली आदत में नहीं डाली। पर इन्होंने एक दो घूंट पानी पिया और माँ को प्रणाम करके आगे चले गए, चलते चले गए, बिना रुके बिना नींद लिए चलते चले गए, प्यासे भूखे। जब बहुत भूख लगी तो कभी गंगा का पानी पी लिया।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता। सोचिए इतने छोटे बच्चे को इतना सारा कुछ देखना पड़ रहा था। और तीसरे दिन सूर्यास्त का समय था, सनसेट हो रहा था। तेजी से बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अचानक से जिस गांव से गुजर रहे थे ना, उस गांव के जमींदार ने देखा तो अपने नौकर को भेजा पूछने के लिए कि कौन है। तो लेकिन उस नौकर की इतनी हिम्मत नहीं हुई, तो जमींदार स्वयं आया। कुछ था इनके आंखों में देख के नौकर की हिम्मत नहीं हुई। तो जमींदार ने पूछा, ये जमींदार और इस बच्चे के बीच की बात है, तुम कौन हो? बच्चा, तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जमींदार, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, और इतनी जल्दी में, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते में, रास्ता भी नहीं, क्यों जा रहे हो भी इतने उस समय तो बिजली भी नहीं होती थी ना, इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने कहा, तुम इस स्थिति में नहीं हो जो जान सको कि ये सही पथ है या गलत, ये सही समय है या गलत। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी होगा कि मैं काशी से आ रहा हूँ और हिमालय की ओर जा रहा हूँ ध्यान करने के लिए। जाओ, अपना काम करो, अपने जीवन पे ध्यान दो, मुझे परेशान मत करो। जमींदार ने बड़े हिचकते हुए पूछा कि महाराज, मैं क्या आपसे ये जान सकता हूँ आपने अंतिम बार खाना कब खाया था, भीख कब मांगा था? बच्चे ने कहा, अभी तक गंगा, माँ गंगा का दिया हुआ आशीर्वाद जल जो है वही मेरा खाना भी है और पानी भी है। जमींदार, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे घर आकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए और भोजन कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, और अभी अंधेरा भी हो रहा है। बच्चे ने कहा, मैं किसी के घर जाकर के, लोगों के घर जाकर भीख नहीं मांगने वाला। जहां तक तुम्हारी संतुष्टि की बात है, मेरे खाने से तुमको कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। संतुष्टि का मतलब है कि मन में कोई इच्छा नहीं हो और आगे भी कोई इच्छा ना उठे। मुझे कुछ भीख दे करके तुमको कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। वो केवल इस बात से मिलेगी जो अनंत सत्य है, जिसको जानने से ही सब कुछ जाना जा सकता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने लायक नहीं रहता है। इसलिए अपना सारा प्रयास, अपना कर्म उस तरफ लगाओ। जमींदार ने ऐसा सोचा कि इतने छोटे बच्चे ने कहाँ से पढ़ाई की, ऐसा क्या देखा है, और इतनी, ऐसा सोच, तो उसने अपने नौकर को बोल के गंगा के किनारे ही दूध का की व्यवस्था कराई उनके पीने के लिए। बच्चे ने 2/3 भाग, 2/3 जो दूध था उसका 2/3 हिस्सा पिया, और एक भाग जो है माँ को दक्षिणा के रूप में गंगा में डाल दिया कि माँ ने अभी तक मुझे पानी दिया, तो ये माँ का हिस्सा बनता है। माँ बहुत प्रसन्न हुई और माँ ने आशीर्वाद दिया कि आगे कभी भी तुमको भूख और प्यास का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कभी खाने के लिए भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। और ऐसा कहते हैं कि उसके बाद कभी भी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने को भूखे नहीं रहना पड़ा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसे आके खाना देकर चला जाता था। वो आगे बढ़े और गंगा के किनारे चलते चलते चले गए। जब भी संध्या का समय होता, रुक के संध्या वंदन करते और फिर आगे बढ़ जाते। कभी जब बहुत भूख महसूस होती
तो जो कुछ भी आसपास दिखता वो खा लेते, जो खाने लायक था, जैसे पत्ते या और गंगा का पानी पी लेते। और कभी बहुत थक जाते तो किसी पेड़ के नीचे सो जाते। उनके अंदर की ये आध्यात्मिक अग्नि इतना इतने थकने के बाद भी पूरे शरीर से ऐसा लगता था जैसे तेज निकल के आ रहा हो। उनकी आंखें बहुत गहराई आंखों में बहुत गहराई दिखती थी। 3 दिन के बाद उन्होंने अचानक से ये देखा कि गंगा जो है चौड़ी होती जा रही है। तब उन्होंने रियलाइज किया कि वो संगम पहुंच चुके हैं। संगम मतलब प्रयाग। अपने दादा से उन्होंने त्रिवेणी संगम के बारे में सुना था, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और आगे बढ़ गए। बहुत थक जाने पर एक लकड़ी के तख्ते पे बैठ गए। दशाश्वमेध घाट की बात है। दशाश्वमेध घाट प्रयाग में है। बैठे थोड़ी नहीं, देर। बनारस में है। हाँ वही तो, कुछ तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वो ध्यान करने लग गए। अचानक उन्होंने देखा कि कोई एक अनजान व्यक्ति आके पास में चुपचाप बैठ गया, पर उसने कुछ बोला नहीं। वो केवल बच्चे को देखता रहा और बच्चे ने भी उसको देखा। फिर थोड़ी देर के बाद वो और पास आया। फिर थोड़ी देर के बाद और पास आकर बैठ गया। तो बच्चे को बहुत लगा कि ये है कौन, क्या चाहता है। तो दोनों के बीच की बातचीत है। उस व्यक्ति ने एक पेपर निकाला अपने जेब में से और पेपर में कुछ देखा और फिर वापस अपने पास रख दिया। नहीं, बच्चे के सामने रख दिया। तो बच्चे ने पूछा, ये क्या है? व्यक्ति, तुम्हारा विवरण। बच्चा, तुम कौन हो? व्यक्ति, मैं पुलिस वाला हूँ। बच्चा, तुम क्या चाहते हो? व्यक्ति, ये तुम्हारा विवरण है, तुम घर से भाग भाग के आए हो। बच्चे ने कहा, इतनी अधिक बात करने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक विवरण है कि नहीं? व्यक्ति, हाँ। तो तुमको जिसने भी ये विवरण दिया है उसको जाके बता दो मैं यहाँ हूँ। उनको ये बोल देना मैं यहाँ आ चुका हूँ और मुझे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ आके लेके चले जाए। पुलिस वाले ने बोला, हाँ हाँ मैं अवश्य बताऊंगा, पर तुम मुझे ये बता सकते हो तुम घर से इतनी दूर क्यों आ गए हो? बच्चे ने कहा, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तुम इतनी अपने घर से इतनी दूर क्यों आए हो, मैं तुमसे पूछता हूँ। तुमने अपना घर कभी छोड़ा क्यों नहीं? एक पल के लिए पुलिस वाला भूल गया कि वो कौन है। वो उस बच्चे के इस फिलोसॉफिकल लॉजिक तर्क से बड़ा अचंभित हुआ। फिर उसने बोला, सब अपने घर पे रहते हैं क्योंकि वहीं पर सारी सुख सुविधा होती है। तुमने सारी सुख सुविधा छोड़ के, घर छोड़ के इतनी दूर आ गए हो। क्यों तुम अकेले इतना भटक रहे हो, और वो भी इतनी गर्मी में? बच्चे ने कहा, महाशय, आप अपना काम करिए और अपने घर के सुख सुविधाओं का भोग उठाइए। माँ गंगा के गोद में और इन बालुओं में चलते हुए जब मौन में मैं चलता हूँ, मैं यहाँ बेचैन नहीं हूँ। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये बेचैनी है या इसमें आनंद है। कभी भी नहीं समझ सकते आप। पुलिस वाले को और भी अचंभा हुआ और उसके मन में बच्चे के प्रति बहुत सम्मान का भाव जागा। पुलिस वाला बोलता है, तुम बहुत छोटे हो, पर तुम किसी बहुत बड़े परिवार से लगते हो।
इस तरह भटकते रहना एक अनाथ की तरह, तुमको शर्म नहीं आती? बच्चे ने कहा, यह सही है कि मैं छोटा हूं, पर तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, है कि नहीं? पर बड़ा होने के बाद भी तुम ये नहीं समझ सक तुमको ये तब भी ये नहीं समझ में आ रही कि कौन अनाथ है कौन अनाथ नहीं है। तुम अगर थोड़ी गहराई से देखोगे तो तुमको पता चलेगा, जो सर्वव्यापी चेतना है, जो ईश्वर तो नहीं बोला उन्होंने, इस तरह सुप्रीम सोल बोला, वो सबका पिता है। सबका माता भी वही है, पिता भी वही है, सबका मालिक भी वही है। जो भी उसको समर्पण करता है, जो उसमें शरणागति लेता है, जो उनमें अपने आप को संरक्षित महसूस करता है, क्या उसको अनाथ कह सकते हैं? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वो व्यक्ति अनाथ नहीं है जिसने आज तक उस अनंत चेतना के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा है? पुलिस वाला और भी स्तब्ध रह गया, स्पीचलेस। और उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी साधारण बच्चे से नहीं बात कर रहा है, पर कोई एक महान आत्मा एक बच्चे के रूप में बात कर रही है। थोड़ी देर मौन रहा, फिर पुलिस वाले ने बड़े विनम्रता के साथ कहा, आप मेरे पर एक एहसान करिए, मेरे साथ आइए, क्योंकि मेरे पास ये विवरण है। मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, पर मैं आपको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाऊंगा। आप मेरे साथ मेरे घर आइए और रात को वहीं रुकिए। सुबह सुबह कल मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। बहुत अनुग्रह विनय किया, बच्चा मान गया। और पूरी रात फिर पुलिस वाला उस बच्चे से घर पर बात करता रहा। तब उसको समझ में आया कि वो हिमालय पहुंचकर अपना पूरा जीवन ध्यान और ईश्वर को जानने में लगाना चाहता है। पुलिस वाले को ऐसा लगा कि अच्छा होगा कि ये बच्चा पैदल न चलता हुआ बल्कि किसी ट्रेन में बैठकर जाए। ये मैं कहानी बता के गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? सब लोग सोच में पड़ गए बहुत ज्यादा। स्वामी जी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा, ये सब ऐसा नहीं मन में भाव लाना है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हम ऐसे नहीं। हम सबकी यात्रा ना अपनी अपनी यात्रा है, सब एक ही रास्ते पे नहीं चलते हैं। ठीक है ना? ऐसे नहीं सोचिएगा। और वो हमारे गुरु भी हैं, तो उनकी यात्रा हमारी यात्रा है। एनीवे, पुलिस वाले ने अगले दिन सुबह हरिद्वार के लिए ट्रेन में बिठा के टिकट काट कटा के दे दिया। और फिर बच्चा हरिद्वार पहुंच जाता है। हरिद्वार पहुंच के माँ गंगा में स्नान लेने गया, और एक वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको नोटिस कर लिया। फिर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। वो मन ही मन ये सोच रहा है, और तब तक पता चला कि इनके पिताजी ने इनाम भी रख रखा कि जो भी इस बच्चे को लाकर वापस देगा उसको इनाम मिलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर आके पूछता है कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया है और कहाँ जा रहे हो? बच्चा बोलता है, सुप्रीम फादर, टू मीट माई सुप्रीम इन ऑर्डर टू मीट माई सुप्रीम फादर आई एम मेकिंग स्ट्रेट फॉर द हिमालयस। मैं सीधे हिमालय की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस अनंत सत्ता से मिलना है। पुलिस वाला, पर मैं तुमको वापस भेज करके इनाम लेना चाहता हूँ। बच्चा बोलता है, मेरा निर्णय अडिग है। अगर तुम भेज भी दोगे, मैं कुछ वहां रुकने वाला नहीं, मैं फिर से निकल जाऊंगा, दूसरे दिन ही वहां से निकल जाऊंगा।
इसलिए तुम मेरे रास्ते में मत खड़े हो और मुझे जाने दो। पर अगर तुम में इतना लालच है, इनाम का इनाम का लालच है, तो तुम मुझे भेज दो और इनाम भी ले लो। तुमको जो करना है करो। पुलिस वाला धार्मिक व्यक्ति था। उसने बच्चे की बात सुनी और चुपचाप चला गया। उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो बच्चा ऋषिकेश पहुंच जाता है। फिर दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको देख लिया। इस बार उसने कुछ नहीं सुना, बच्चे को ले जा करके घर पहुंचा दिया और इनाम भी ले लिया। घर पहुंच के वो बच्चा अपने घर बड़ों को सन्यास और ईश्वर को जानने की ये सब बड़ी बड़ी जो बातें होती है वो सब बात की। पर उन लोगों ने बचकानी हरकत है, बचपना है, ऐसा बोल करके उसको इग्नोर कर दिया। उसने बहुत मना किया कि मुझे इस सब जिंदगी में नहीं फंसाइए। और घर वाले उतनी ही तेजी से कि वो फिर से कहीं भाग ना जाए, इससे अच्छा है कि उसकी शादी कर देते हैं, ऐसा सोचा। पर वो बच्चा बहुत जिद्दी निकला और उसने थोड़ा भी अपने निर्णय से अ, अपना रास्ता बदलने से इनकार कर दिया। इसके कारण उसके घर के सभी बड़े लोग बहुत चिंतित हो गए। उनको एक तरफ ऐसा लिखा है, उनको एक तरफ ये भी लग रहा था कि संन्यास लेकर ये दुनिया की भलाई ही करेगा, लेकिन जीवन भर ब्रह्मचर्य रखना और संन्यास का पथ बहुत कठिन होता है, वो भी इतने कम आयु में उस पर चलना, ये तो बहुत ही कठिन होगा, ऐसा सोचकर बहुत उन्होंने बच्चे को मनाने का कोशिश की। लेकिन बच्चा नहीं माना। उस गांव में जो सबसे आदरणीय व्यक्ति थे और परिवार के कुल के गुरु भी थे, पंडित जी बोलते थे उनको, परिवार वालों ने उनको बुलाया ये सोच के कि वो बच्चे का मन बदलने में सक्षम हो जाएंगे। पर पंडित जी भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने जो भी तर्क दिया, बच्चे ने तर्क से उसका उत्तर दिया। जो भी कहा उसका तर्क पूर्वक उत्तर दिया। और पंडित जी बुद्धि में उस बच्चे को नहीं जीत सके। तब उन्होंने बच्चे की भावना को छूना चाहा कि तुम अपने माता पिता के इकलौते बच्चे हो। उनकी सारी उम्मीदें, सारी आकांक्षाएं तुमसे जुड़ी हुई हैं। वो बुढ़ापे में तुम उनका सहारा बनोगे, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तुम इस तरह उनको असहाय छोड़ करके, अकेला छोड़ के, जीवन में बुढ़ापे में अंधकार में जीने के लिए छोड़कर मत जाओ। ये कोई ध्यान करने की आयु नहीं है और जंगल में जाने की भी आयु नहीं है। अगर तुमने संन्यास लेने का सोचा भी है तो पहले थोड़े दिन इसका अभ्यास कर लो। ये सही आयु नहीं है। और अभी की जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, पहले उसको निभालो, शादी कर लो और जिंदगी का जो सांसारिक जीवन है उसका अनुभव ले लो। और जब सही समय आएगा तब तुम सब छोड़ करके जंगल में चले जाना। तुम अगर इतने कम आयु में बिना अनुभव के योग में बढ़ना चाहते हो, बिना अनुभव के जाओगे तो तुमसे ये संभव नहीं है। पंडित जी ने ऐसा कहा। पर ऐसा पर उस बच्चे को कौन भटकाता? शायद नियति ने ही ये रास्ता चुन लिया था। बच्चे ने उत्तर दिया, पंडित जी, आपकी आयु 80 की हो गई है।
पर इसके बाद भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको अभी तक ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी आप में इच्छा या भाव नहीं उठी है। ये शर्म की बात है कि आप इस सांसारिक जीवन में इतना बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि आपको अपने आप को मुक्त करने की इच्छा भी नहीं, ये विचार भी नहीं उठता। अगर इस एक बच्चे के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं घर में रुकूं, तो क्या आप बड़े होने, इतनी आयु के बाद आपको सन्यास की ओर नहीं जाना चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है मैं सही निर्णय पे पहुंचा हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरी जिम्मेदारी है। आपने एक बार कहा था कि शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी किसी घर में सत्य को प्राप्त करता है तो पूरा पूरा परिवार ही मुक्त हो जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ सत्य है तो मैं पूरे घर के लिए मुक्ति का कारण बनूंगा। हम लोग को तो कोई बचपन में ये सब बताया भी नहीं, नहीं बताया था क्या उस समय? फिर भी लोग ये सब पढ़ते थे, सुनते थे। खैर, हमारे समय में रामायण ही और महाभारत ही था बस। गीता भी नहीं, रामायण ज्यादा। नहीं, क्या था आप लोगों के बचपन में ज्यादा? मैंने तो रामायण, तुलसी रामायण ही, रामचरितमानस ही ज्यादा सुना है। स्वामी जी रामायण। हाँ, रामायण मुझे ध्रुव की स्टोरी सुनाते थे, प्रहलाद की सुनाते थे। किसका? अच्छा, हाँ, वो तो हाँ, है। दादी माँ ध्रुव प्रहलाद वगैरह की कहानी सुनी है, पर हम्म, रामायण ज्यादा प्रसिद्ध था। रामायण की सुनते थे। हाँ हाँ, रामायण। और बताइए, और क्या था सबके जीवन में? मीराबाई। मीराबाई है? अच्छा। और रामायण। रामायण। अच्छा। और कृष्ण जी स्वामी की जी, वो कहानी। महाभारत और रामायण वो भी जब टीवी सीरियल आ गया तो तब पूरा पता चला। अच्छा, बचपन में ऐसा कुछ नहीं सुना वो। बहुत अच्छा। कम। हाँ हाँ, नीता जी। स्वामी जी हमारे घर में सत्संग बहुत होते थे, मानते थे लोग वो गुरु जी को। अ, आनंदपुर के गुरु जी हैं, उनको मानते थे, तो सत्संग बहुत होते थे। और हम लोगों को धार्मिक पिक्चर देखना ही अलाउ था, वो भी 1-2 महीने में एक बार। तो बहुत अच्छा। सारी पिक्चरें धार्मिक देखी, तो उसके कहानियां पढ़ी, सुनी। तो बहुत हम्म, ज्यादा अच्छा था, ये सभी था। वो हमारे लिए इंटरटेनमेंट था, पर वो हम जुड़ गए थे हाँ बचपन से हाँ, ही सब में। ठीक है। महानंदा, तुम्हारे बचपन में क्या सुना था तुमने, कुछ इस तरह का? ये महानंदा तो फ्रीज हो गई। मेरी मदर ने स्वामी जी मुझसे बचपन में जब हम स्टोरीज पढ़ते थे तो स्टोरी के बजाय भगवत गीता का जो हिंदी पार्ट होता है वो पढ़वाया था, और शिव पुराण भी पढ़वाया था, और रामायण भी पढ़वाई थी। मतलब वो कहते थे स्टोरी पढ़नी है तो ये बुक पढ़ो। ऑफ कोर्स आई डेंट रिमेम्बर एनीथिंग, बट वो पढ़ाई थी हमसे, हम्म, मुझसे। ठीक है। जयश्री जी, आपके हाँ, बचपन? हमारे घर में ना स्वामी जी मेरी कुल देवी रेणुका माता है, देवी। सो देवी की स्टोरियां बहुत पढ़ा। ओ। और मेरे पिताजी ना उस पर उसके साथ मीन्स क्या करना, हम बोलते हैं ना कि तुझे ऐसा बनना है, तुझे ऐसा बनना है, हम्म ऐसा बहुत ये फीड करते थे। देवी हम्म ऐसी थी, देवी वैसी। कुल देवी है हमारी रेणुका। हम्म। तो उनकी सारी देवियां की कहानी पढ़ाते थे, स्टोरी बताते। अच्छा। और एक बात मुझे बहुत अच्छी याद है स्वामी जी, मेरे पिताजी बहुत आध्यात्मिक थे। बहुत भगवान दत्त का, देवी का बहुत ये करते थे। और जब भी मैं बहुत दिनों तक कि जैसे मैं उठ जाती ना, तो वो बोलते कि सूर्य की तरफ मुंह करो और हाथ जोड़ो और बोलो कि हे सूर्य भगवान, तुम्हारे जैसे मुझे बनाओ। हम्म
मुझे आप भी थोड़ा थोड़ा उसका ये समझ में आ रहा है। ये प्रार्थना करने के लिए बोलते थे, डेली डेली। चलो खड़ी हो जाओ, सूर्य की तरफ आंखें बंद करो और बोलो, हे सूर्य भगवान, तुझ्यासारखं मला बनव। बहुत बढ़िया। स्निग्धा, वैसे तुम अभी छोटी ही हो फिर भी। स्वामी जी सच तो मेरे फैमिली में पूजा तो करते ही थे, बट उसके अलावा कोई स्पेसिफिक बुक्स का बचपन में मेरे था नहीं एक्सपोजर। बाद हम्म में थोड़ा सा हुआ, बट ऐसे पूजा सभी करते थे, मेरे ग्रैंडफादर फादर सभी घर पे रूटीनली पूजा करते थे, बट हम्म, ऐसा एक्सपोजर नहीं था। ठीक है। प्रसन्ना जी। स्वामी जी हमारे तो वो नवरात्रि वगैरह में बहुत बढ़िया ये सब होता था देवी का। और वो अधिक महीने में हमारे यहाँ मतलब पूजा होता था, तो वो मम्मी ले जाती थी मेरे को बचपन में। वो बहुत बढ़िया, मतलब सब मिल के सब लेडीज लोग करते थे, तो बच्चा था तब मैं भी जाता था। वो हम्म एकदम याद है। और बाकी वो रामायण वगैरह तो थोड़ा बहुत मतलब राम ये सब तो देख ही लेते थे, और थोड़ा सा। हम्म, ठीक है। काका। हमारा अनम्यूट। बचपन तो बस कष्ट करने में गया। पूरा पढ़ाई करते करते कष्ट करते रहे। वो कुछ सुनने का मौका नहीं मिला। कभी कभी माता जी सुनाती थी रामायण की बातें। हाँ। और क्या, बस। हम्म, ठीक है। अनु। स्वामी जी हमारे घर में सिखिज्म का ज्यादा था। तो हाँ जपजी साहब, सुखमनी साहब, ये रोज शाम को हम मेरी बुआ जी आती थी, पास में रहती थी। वो रोज शाम को हाँ। आती, एक दिया जलता था जहां भी बैठे हैं, और उसके बाद पाठ होता था। और फिर वो कोई ना कोई गुरु जी, गुरु की कोई कहानी, कुछ ना कुछ बात प्रसंग उठता था, नॉट नेसेसरली एवरी डे। और somehow it got related to 1947 जो वो टाइम बिता के आते थे, तो वो कहानियां ज्यादा सुनी। हम्म। दिवाली बहुत बढ़िया मनाते थे हम घर पे। दैट्स इट। बढ़िया। और कौन है पर्दे के पीछे, कौन बताएगा अपना? स्वामी जी वैकेशन में दादा दादी बोलते थे तुम रामायण पढ़ो, हम लोग सुनते। कहीं अच्छा। बाहर नहीं जाना है, गर्मी में कहीं नहीं जाना है। फिर वो ठीक। खत्म हो जाती तो भागवत जी पकड़ा देते थे कि हम लोग सुन रहे हैं, तुम पढ़ के सुनाओ खाली। पहले ये टैक्टिक्स बहुत ज्यादा यूज करते थे बड़े लोग। ठीक है। और रेखा, बचपन में? स्वामी जी बचपन में रामायण और महाभारत की वो जो दूरदर्शन पे आता था वो देखा है। और हमारे घर में वो शेगांव के गजानन महाराज है ना, उनका बहुत हाँ भक्ति था। तो हाँ। वो तो पारायण वगैरह हमेशा मैं भी करती थी, बचपन से ही आदत है, अभी तक है वो, ये गुरु, चलता था बचपन से गुरु मिले हुए थे। गुरु ठीक। का। महानंदा, तुम्हारा? रामायण महाभारत टीवी सीरियल में दिखाते स्वामी जी, पढ़ा नहीं है। ठीक है। देखती तो है स्वामी जी, देखती हूँ, देखना सुनना अच्छा लगता है। हाँ, ठीक ठीक। बढ़िया। स्वामी जी घर में इस तरह बचपन का में कोई ये सब माहौल सुनने से होना फर्क चाहिए। पड़ता है? है? बचपन में ये सब सुनने से कोई फर्क पड़ता है? क्या पता, मुझे नहीं रीजन पता। आप आस्किंग कि मैंने अपने बच्चों से पढ़वाया कुछ नहीं, मैंने लुक एट दैट, पर उन्होंने वही टीवी पे रामायण भी पूरी देखी है, वो श्री कृष्णा भी देखी है, और गुरु जी की आवाज में केनो, कथा, कठो और ईशा उपनिषद भी सुने हुए हैं, सारे सुने हैं। बट वुड दैट मैटर? करता है प्रवीण जी, वो उनके अंदर बीज फूट जाता ना। मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट थी तो रोज वो 1 घंटा रामायण पढ़ती थी तो समय बताएगा। हम्म, हम जो देखना चाहते हैं वो देखने का प्रयास छोड़ दीजिए। हम कुछ विशेष देखना चाहते हैं, वो एक अलग होता है। ठीक है ना? बढ़िया। कहाँ थे हम? कितना बज गया? अरे 6:15 बज गया, इतना टाइम हो गया।
ऐसा सुन के पंडित जी ने। स्वामी जी हाँ, तुम्हारा बताओ। खा रहे थे आज लेट लेट हो गया, खाना खा रहे थे इसलिए नहीं बोले स्वामी जी। नहीं, कोई बात नहीं। कहानी चलता था हमारे घर में, कहानी वगैरह सुनाना दादी सुनाती थी। और दादा दादी लोगों के पास ज्यादा रहे नहीं हैं। और नानी रामायण पढ़ती थी पर इंटरेस्ट कुछ नहीं रहता था सुनने का उस समय ठीक ये था। था। हम्म। ठीक है, मैं ना इसको पढ़ लेता हूँ और पूरी कहानी ऐसे ही सुना दूंगा, ठीक है ना? बहुत अच्छी कहानी है ना। बोलिए मेघदर्शिनी जी। आई ज्वाइन लेट, तो वो ब्रह्मानंद सरस्वती की कहानी थी ना? हम्म। वेयर डिड यू फाइंड इट? वेयर कैन वी फाइंड इट? ढूंढो। ढूंढने वाले को आज के डेट में क्या नहीं मिल जाएगा। ये मुझे मिला नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स में महर्षि महेश योगी जी का बहुत बड़ी उपस्थिति रही ना। पूरे जगह रही पर नीदरलैंड में बहुत ज्यादा रही। तो हमारे एक टीचर हैं जिन्होंने महर्षि जी के पास शुरू किया था, तो उनके पास ये पुस्तक थी, उन्होंने दिया पढ़ने के लिए। प्लीज स्वामी जी, वो अब आर्ट ऑफ लिविंग के साथ नहीं है। स्वामी पूर्ण चैतन्य, उन्होंने 7 जो हमारे गुरु हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मानंद सर, ये जो आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ उन्होंने उन सभी की लाइफ स्टोरी हाँ, मुझे बताई है पता है। यूट्यूब पता है एलेक्स ने ये बताई है, पर एलेक्स ने ठीक है उसका अपना वो थोड़ा अपना भी जोड़ दिया। में। कोई नहीं। है बहुत छोटी सी है लेकिन काफी कुछ है इसमें। आगे बढ़िए ना। कौन सा टाइमलाइन है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का? टाइमलाइन क्या है? 1870 में जन्म हुआ था। 1870। 1770? 1870। ओके, ठीक है, क्योंकि ट्रेन आ गई थी ना तभी पूछ रही हूँ। हाँ। ओ, इसमें एक दो पेज गायब है। खैर, मैं पढ़ के पूरा कल कल भी बताता हूँ। आज कहानी इतनी काफी है। यार मेडिटेशन करवाइए ना, बहुत दिन हो गए। मैं भी सोच रहा था। पूरा अब तो नहीं पढ़े हैं ना स्वामी अब जी? दुनिया तो नहीं छोड़ना है, संन्यास तो नहीं ले सकते, लेकिन जो उन्होंने रियलाइज किया, देखा, उस पर आज रात को चिंतन कर सकते हैं। हालांकि हमको गुरु मिल गए, पथ मिल गया, फिर भी कि जाना तो एक दिन सबको है। बहुत लोग चले भी गए हमारे, तो फिर आखिर और राम नाम सत्य है, तो राम को कैसे पाया जाए? रास्ते पे बढ़ गए और क्या करना होगा? क्या बोल रही हो सोनी? पूरी जीवनी तो नहीं पढ़े ना अभी? नहीं ना, पूरा नहीं। अभी बाकी है ना? समय हो गया, कल पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा। ठीक है।